Very good afternoon, everyone. I, Dr. Nishit Patel, Associate Professor, Aryan School of Pharmacy and Bioresearch Institute, welcome you all on behalf of Swarnim Startup and Innovation University. Dear all, as you all know that Swarnim Startup and Innovation University is first of its kind, that is startup university. It is hyperactive in providing opportunity to the students for startup, incubation, mentorship, leading them to an entrepreneurship under the vision of becoming globally competent institutions imparting education based upon the foundation of innovation and entrepreneurship. The university is putting continuous efforts to nurture budding entrepreneurs. One of such effort is Swarnim Talk, where the expertise from the globe provide their critical important view and solutions to guide the students toward the journey of entrepreneurship. So far, many sessions have been covered in Swarnim Talk, including scope of startup in various fields, role of research and innovation in startup, financial and legal aspects of startup, company formation, etc. Today, we are here with another very important untouched corner of startup, that is opportunity versus challenges, risk versus reward as an entrepreneur. Dear friends, every new journey seems very difficult from a distance, but if you have a guide along with you, the journey becomes pleasant one. A life cycle of a startup and a new entrepreneurship is full of excitement, but taking it to a success is a tricky one. And taking it to a new success every time is even challenging. So to talk about every opportunity you have as an entrepreneur with challenges and possible risk you can take against the reward you will get. With us on Swarnim Talk today, we have a guide, a mentor, and an entrepreneur who had started his own entrepreneurship journey 11 years back. Yes, that is Mr. Mukesh Jagwani ji. Welcome, sir, on this digital platform of Swarnim Startup and Innovation University. Here, I take opportunity to introduce our sir. Yes. Shri Mukesh Jagwani Sirji is the founder and director of Money Guru FinServe, a wealth management and investment banking, financial advisory and consulting firm with a national and international presence across 8 countries. His Money Guru Financial Advisory Services (MFAS) is active since last 2011 with his strong professional team with a rich experience and currently managing portfolio of 1400 plus clients across India. Mr. Mukesh Jagwani is versatile and dynamic business entrepreneur, a great networker, influencer, and passionate about his work. He is also state chairman, Gujarat CIMSME, Confederation of Indian Micro, Small and Medium Enterprises, National Joint Secretary and Global Director, and Secretary at Rotary Club, Baroda. Besides his passion, beside this, his passion is business, coaching, and mentoring startups, MSME businesses, business owners, and entrepreneurs. He is global speaker and has been on many forums across India and globe. And मैं और एक चीज बताना चाहूंगा, मुकेश जगवानी जी is also one of the mentor in our mentor pool of Swarnim Startup and Innovation University. So welcome, sir. Thank you, Dr. Nishit. Yes, sir. Over to you, sir. Okay. So thank you very much for that brief and crux introduction. Jo last line hai na, that is very important. I am passionate about what I do, whether it is work at Money Guru or whether it is MSME or startup coaching and consulting. Because that's something that I am very passionate about, and across India and globe, jahan pe bhi main travel karta hu, I interact with entrepreneurs and the aspiring entrepreneurs who are trying to start their startup journey.
So you know why so because जब हमने शुरू करा था अपना करियर तो हमारे साथ कोई ऐसे मेंटर नहीं थे या गाइड नहीं थे, कोच नहीं थे। जो भी हमने हमारा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस था उसके बेसिस के ऊपर वी स्टार्टेड, बट देन आफ्टर स्टार्टिंग इनिशियली वी स्ट्रगल फॉर 3 years a lot, जहाँ पे यू नो वी कुडंट फाइंड आवर राइट पाथवे एंड बहुत बार गाड़ी डगमगाई, बहुत चैलेंजेस फेस किए एंड बहुत बार ऐसा भी कभी ख्याल आया मन में कि यार ये क्या कर दिया, इतनी अच्छी जॉब कर रहे थे, इतनी सीनियर पोजीशन पे जॉब कर रहे थे, वहां से छोड़ के ये क्यों मनी गुरु स्टार्ट किया होगा। कुछ से क्षण में हमने ये डिसाइड किया कि यू नो मनी गुरु अपना वेंचर स्टार्ट करेंगे। सो बट देन इनिशियल 3 years के बाद यू नो वी केम आउट ऑफ दैट इनिशियल फेज ऑफ स्ट्रगल एंड चैलेंज, एंड उसके बाद we never look back and we have been continuously growing year on year. But 5 years back, you know, as a commitment to society and to the budding entrepreneurs, we decided that जो हमने face किया है वो ये young generation face नहीं करेगी, नहीं करनी चाहिए rather उनको, because they are so happy and lucky that they are part of such a beautiful ecosystem. Universities उनको इतना अच्छा support करती है, इतने अच्छे उनको sessions करवाती है, so they should not suffer. And that's the reason why we said like, okay, we will start mentoring and coaching startups and MSME and SME corporate clients. So thank you very much, Dr. Nishit. You know, this was just a brief. Okay, so आज मैं जो करने वाला हूँ, all the entrepreneurs and all the students and the entire team जो हमें देख रही है FB Live पे या इस Zoom पे, दो चीजें मैं करने वाला हूँ आज. So before I start, I want you to take your writing pads, अपनी डायरी नोटपैड ले ले, बिकॉज जो आज का टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं ये टॉपिक वो है जो आइडियली हम वो फिजिकल वर्कशॉप करते हैं जब मैं अपने बडिंग एंटरप्रेन्योर्स और एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर्स के साथ करता हूं, विच इज अबाउट 4 to 6 hours का सेशन होता है, बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ एक्टिविटीज उसके अंदर जब हम करते हैं. उन सारी चीजों को क्रक्स में ला के मैंने ये 45-50 मिनट्स का सेशन तैयार किया है फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ स्वर्णिम यूनिवर्सिटी. दिस तो मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, बट देन इन द नेक्स्ट 45-50 मिनट्स I am going to talk about entrepreneurship journey and everything about entrepreneurship. जब मेरे को ये कहा गया कि स्टूडेंट्स को एड्रेस करना है स्वर्णिम यूनिवर्सिटी के, तो मुझे ये भी कहा गया कि बहुत सारे सेशंस हो चुके हैं पहले स्टूडेंट्स के साथ. तो आई वाज थिंकिंग कि मतलब कुछ क्या अलग से मैं दूंगा स्टूडेंट्स को, या क्या वैल्यू एडिशन मैं करना चाहूंगा, या क्या मेरे सेशंस में से स्टूडेंट्स को वैल्यू एडिशन मिलेगा. So I thought I'll share with you some secret tips for you to become successful. So मैं अपने सेशन में 3 चीजें कवर करने वाला हूँ. एक तो हाउ टू स्टार्ट अ बिजनेस और फ्रॉम स्क्रैच, उसके लिए थॉट प्रोसेस क्या होना चाहिए, अपना माइंडसेट कैसा होना चाहिए. सेकंड, एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप, जो जर्नी आप शुरू करने की प्लान कर रहे हो जिसमें बहुत सारे रिस्क, चैलेंजेस, अपॉर्चुनिटीज हैं, उस जर्नी के बारे में मैं आपसे कुछ डिस्कस करूंगा. एंड थर्ड, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, रीजन व्हाई स्टार्टअप फेल्स. हमारा इंडिया का सर्वे क्या बोलता है, बहुत सारे सर्वे किए गए, बट देयर इज अ लेटेस्ट सर्वे व्हिच इज आउट जिसमें कहा गया कि सो आई एम गोइंग टू डिस्कस मोर अबाउट कि हमारे स्टार्टअप्स इंडिया में क्यों फेल होते हैं. एंड फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट, सक्सेस हैबिट्स ऑफ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स. जो एंटरप्रेन्योर सक्सेसफुल हैं वो क्या करते हैं, कुछ हट के वो ऐसा क्या करते हैं कि जो उनको सक्सेसफुल बनाते हैं. एंड फिफ्थ, मुकेश जगवानी मनी गुरु क्या करता है स्टार्टअप मेंटरिंग और कोचिंग में जब हम सेशंस लेते हैं विद द एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर्स. बट सो लेट मी बिगिन विद अ वेरी फेमस कोट. इसीलिए मैंने आप लोगों को कहा कि अपनी डायरी और नोटपैड लेके रखिएगा, बिकॉज आई एम गोइंग टू शेयर लॉट ऑफ कोट्स, लॉट ऑफ सीक्रेट टिप्स. सो टू बिगिन विद, हारता वही है जो शिकायत बार बार करता है. हारता वही है जो शिकायत बार बार करता है, और जीतता वही है जो कोशिशें 1000 करता है. तो हमारी चाहत है कि हम सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, है ना. एम आई राइट? हम लोग सब यही चाहते हैं दैट आई वांट टू बी अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर. बट
टू बिकम अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर, सो एक चाहत है मेरी और एक मेरा काम है। सो मैं चाहता तो हूं कि मैं सक्सेसफुल बनूं, लेकिन उस चाहत को फुलफिल करने के लिए मैं क्या करता हूं। सो दैट इज समथिंग दैट यू ऑल नीड टू थिंक अबाउट योरसेल्फ, कि मतलब मैं शिकायतें करता हूं बार बार या मैं कोशिशें करता हूं हजार। सो एज आई सेड, जीतता वही है जो कोशिशें करता है बार बार। Okay, now so let's start with how to start an entrepreneur का thought process क्या होता है। So my first question to all of you is, आप लोगों ने स्वर्णिम यूनिवर्सिटी ज्वाइन करी, so if any one of you can respond on FB Live, why did you join स्वर्णिम यूनिवर्सिटी? तो आप लोग रिस्पॉन्ड करते रहना FB पे। मैं FB लाइव पे आप लोगों को वॉच कर रहा हूँ। जब भी आप लिखोगे तो मुझे FB लाइव पे भी दिखाई देगा कि जो रिस्पॉन्ड कर रहा है। ओके, सो सबसे ज्यादा जो हमने लोगों के साथ जब अब इंटरेक्ट करते हैं तो हमें ये समझ में आता है कि अनसर्टेनिटी क्या होती है, अनसर्टेनिटी एंड लैक ऑफ क्लैरिटी ऑफ कैरियर। एक रिसेंट अभी मैं एक वो सर्वे पढ़ रहा था, तो उसमें 90% ऑफ द स्टूडेंट्स को क्लैरिटी नहीं थी कि उन्होंने ये कोर्स क्यों ज्वाइन किया। इंजीनियरिंग, चाहे CA, चाहे MBA, चाहे CA, चाहे MBBS, चाहे BBA या और कोई भी कोर्स। तो उन्होंने ज्वाइन ये कोर्स इसलिए किया क्योंकि दोस्त लोगों ने कहा कि दोस्त लोग ये कोर्स में जा रहे थे। तो आई हैव सीन लॉट ऑफ स्टूडेंट्स जिन्होंने BBA ज्वाइन कर लिया या BCom ज्वाइन कर लिया जस्ट बिकॉज के मेरा फ्रेंड सर्कल वहां पे जा रहा था तो मैं भी वहां चला गया। कुछ लोगों को हमने जब मैंने उनसे पूछा तो पता चला कि भाई दोस्तों ने कहा, पेरेंट्स ने कहा, नेबर्स ने कहा, और कुछ लोगों को बोला गया कि ये कैरियर में ये कोर्स करने के आगे कैरियर के बहुत ज्यादा एडवांटेजेस हैं, सो यू विल बी एबल टू स्टार्ट अ अच्छा एक कैरियर शुरू कर सकोगे। बट हमने कभी खुद की स्ट्रेंथ के बारे में नहीं सोचा, नहीं कभी पता लगाया कि मेरा इंटरेस्ट कौन से कोर्स में है, मैं क्या करना चाहता हूं, मैं ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद क्या करना चाहता हूं। एंड दैट इज वेयर ऑल जहां पे आके ये बात आती है, रुकती है। बट आई एम हैप्पी जिन लोगों ने भी स्वर्णिम यूनिवर्सिटी ज्वाइन किया है, तो मतलब उसके एक बेसिक फंडा क्लियर होंगे, उसके दिमाग में वो केमिकल लोचा नहीं होगा जैसे हमारे दिमाग में हुआ करते थे जब हम 12th और ग्रेजुएशन करके बाहर निकले थे, क्योंकि कोई आता पता नहीं था कि आगे क्या करना है। पेरेंट्स ने बोला BBA कर लो, BBA कर लिया, उसके बाद MBA करना था, MBA कर लिया, उसके बाद PD पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन HRM करना था, वो भी कर लिया। तो ये सब करते करते अपनी जिंदगी कट गई, बिकॉज हमारे टाइम पे उतनी टेक्नोलॉजी और उतने वो इस किस्म के कोर्सेज अवेलेबल नहीं थे। बट ऑल द स्टूडेंट्स हु जॉइंड दिस स्टार्टअप स्वर्णिम स्टार्टअप एंड इनोवेशन यूनिवर्सिटी, मतलब आई प्रिज्यूम कि आपके दिमाग में यू आर वेरी क्लियर एंड योर फोकस इज वेरी क्लियर दैट यू आर trying to build your own startup and you want to become a aspiring entrepreneur. And मैं जब भी यूनिवर्सिटीज में डिस्कस करता हूं तो मैं हमेशा ये चीजें बोलता हूं, विच आई वांट यू वांट आल्सो टू राइट, कि बच्चों को ये नहीं सिखाया जाना चाहिए कि क्या सोचे, उनको ये सिखाया जाना चाहिए कि कैसे सोचे। तो that is where the difference is. Education should not be imparted with a vision to create education should be imparted with a vision to create entrepreneurs and not only preparing them for jobs. Okay, जब हम ग्रेजुएशन पढ़ते थे 25 साल पहले, तब कोई एंटरप्रेन्योर के बारे में पढ़ाता नहीं था, तब तो सिर्फ जॉब के बारे में पढ़ाते थे। टुडे वी आर ऑल लकी कि हमें एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स आते हैं जो आके समझा के जाते हैं और अपने बारे में, अपना पूरी लाइफ की हिस्ट्री और अपनी पूरी लाइफ की चैलेंजेस के बारे में अपने को बता के जाते हैं, अपना सक्सेस और अपनी कैरियर अपने साथ शेयर करते हैं, सो दैट यू लर्न फ्रॉम देम। सीखने के दो तरीके होते हैं, एक या तो खुद के अनुभव से और दूसरा किसी अनुभवी के पास जाके उनसे सीख लिया जाए। सो दैट इज हाउ यू लर्न। Okay, so I am happy that Swarnim University is taking these initiatives for the students of Swarnim University, क्योंकि एक बहुत सिंपल कहावत थी जो मुझे कई सालों पहले बताई गई थी कि पहचान से मिला काम बहुत समय के लिए नहीं रहता है,
लेकिन काम से मिली पहचान जिंदगी भर रहती है। Look at the top notch B schools, जो आज स्वर्णिम यूनिवर्सिटी कर रहा है। ये आज से कई साल पहले IIMs और IITs में इस किस्म की पढ़ाई की कराई जाती थी, जहां पे 8 से 10 लाख रुपया सालाना फीस हुआ करती थी, बिकॉज वो उनको ये सारे केस स्टडीज, मतलब ये सारी फ्लेक्सिबल एजुकेशन सिस्टम बनाया गया था, जहां पे उनको आर्मी के सोल्जर्स बनाने की कोशिश की जा रही थी। सिनेरियो एनालिसिस, केस स्टडीज डिस्कस होती थी, इंडस्ट्री विजिट्स होती थी, इंटर्नशिप्स के लिए उनको भेजा जाता था। ये सारी चीजें करी जाती थी, जो आज स्वर्णिम यूनिवर्सिटी अपने स्टूडेंट्स को कराता है। एंड दिस एक्चुअली हेल्प स्टूडेंट्स टू कम आउट विद इनोवेटिव सॉल्यूशंस एंड प्रिपेयर देम ऑन कोई भी सिनेरियो में, कैसे भी सिनेरियो में कौन सा सॉल्यूशन लाया जाए। So that is what the entrepreneur का thought process has to be. Gone are those days, as I said, 25-30 years back, जब मैं अपना schooling करता था, there were no case studies, no exercise, no visual learning, no guest lectures, no interaction with industry experts. But we are all lucky. आप आज की young generation is lucky that you have all these opportunities available with you. You have the best of technology infrastructure available with you. You have such a lovely mentors and guides. आपके कॉलेज में, कैंपस में, ऑनलाइन टेक्नोलॉजी, एवरीथिंग इज अवेलेबल फॉर यू। बट ये सारी चीजें अपने पास अवेलेबल है। इट इज अप टू द स्टूडेंट्स who are planning to become an aspiring entrepreneurs, इस इंफॉर्मेशन को हम कैसे यूटिलाइज करते हैं, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो दैट वाज इन नटशेल, जब मैं बता रहा था कि स्टूडेंट कहाँ से कैसे अपनी शुरुआत करते हैं। नाउ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट एवरीथिंग ऑन द एंटरप्रेन्योरशिप, एंड आई वांट ऑल द स्टूडेंट्स जो आज ये सुन रहे हैं, ये जैसा मैंने कहा कि ये 4-6 घंटे का सेशन है, जिसमें से मैंने क्रक्स और बुलेट पॉइंट्स निकाल के रखे हैं। सो मैं हर एक पॉइंट को बहुत ज्यादा डिटेल में जाके नहीं समझाऊंगा, बट जितनी चीजें हमें समझ में आई है वो मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करने वाला हूं। सो ये 13 पॉइंट्स हैं जो मैं हमेशा हर एंटरप्रेन्योर्स को, और इवन जो स्टार्टअप्स को जिनको हम मेंटरिंग कर रहे हैं, सो अक्रॉस इंडिया देयर आर मोर देन 23 स्टार्टअप्स जिनको आज मनी गुरु हैंड होल्ड कर रहा है, मेंटर कर रहा है, नर्चर कर रहा है। और उनके साथ जब हम बैठते हैं और उनकी टीम के साथ जब हम बैठे होते हैं, तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो हम क्लोजली उनके साथ मॉनिटर करते हैं और उनको ये गाइड करते हैं ताकि दे बिकम सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स और वो फेल ना हो जाए। सो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट दिस 13 पॉइंट्स व्हिच आर वेरी वेरी क्रूशियल, एंड आई वांट ऑल ऑफ यू टू राइट इट डाउन इन योर डायरीज, नोटपैड, जो भी आप लेके बैठे हैं उसके अंदर उसको नोट कर लें। सो द फर्स्ट पॉइंट इज, और लिखना मैं इसके लिए बोल रहा हूँ बिकॉज हमारा दिमाग जो है ना, इसमें इतनी सारी इंफॉर्मेशंस आती हैं दिन भर के अंदर, और चाहे आप पूरे दिन भर में देखो, हम टीवी देखते हैं, यूट्यूब देखते होंगे, मोबाइल में देखते होंगे, तो हमारे दिमाग में इतनी सारी इंफॉर्मेशंस आती हैं, तो हमारे कहीं ना कहीं हम उस जो लिखा हुआ हमारे सामने रहता है, जिसको हम बार बार पढ़ते हैं, वो चीजें जल्दी याद रहती है हमारी। एंड दैट इज द ओनली रीजन व्हाई आई वांट यू टू राइट इट डाउन, बिकॉज जब मैं अपनी ट्रेनिंग लेता हूं या जब मैं करता हूं, तो मैं ये सारी चीजें लिखी हुई होती है। आज जितने भी, अगर आप लोग जो भी लोग बड़ौदा में हैं और अगर वो मेरी ऑफिस में आएंगे, तो मेरे ऑफिस में, मेरी कैबिन में बहुत सारी चीजें लिखी हुई होती है, बिकॉज आई कीप ऑन कॉन्स्टेंटली रिमाइंडिंग माई सेल्फ सो दैट मैं वो भूल ना जाऊं, क्योंकि हमारे पास इंफॉर्मेशन का भंडार है, हम चारों बाजू से घिरे हुए हैं टेक्नोलॉजी से और उससे, एंड दैट इज द ओनली रीजन व्हाई आई वांट यू टू राइट इट डाउन, these points that I'm telling you. Okay, so entrepreneurship is इसमें सबसे बड़ी चीज होती है, it is all about innovation and automation. That's the first thing. जब एक एंटरप्रेन्योर अपने बिजनेस के बारे में स्टार्ट करने के लिए सोचता है, तो उसे ये चीज सबसे पहली सोचनी चाहिए कि मैं इनोवेटिव और इनोवेशन एंड ऑटोमेशन को मैं क्या करने वाला हूं, कैसे करने वाला हूं। एसेट लाइट मॉडल, अपना बिजनेस का मॉडल कैसे बनाऊंगा मैं, क्या होना चाहिए मेरे बिजनेस का मॉडल, कैसा होना चाहिए मेरे बिजनेस का मॉडल। थर्ड इज हैसल प्रीमियम, बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके प्रीमियम को मार्केट में कैसे लाया जाए। सो मैं जो भी प्रोडक्ट, कंसेप्ट, सर्विस बना रहा हूं,
उसके पीछे का थॉट प्रोसेस क्या है, व्हाट आर द चैलेंजेस, जो प्रॉब्लम्स हमने आइडेंटिफाई करी थी उसको with the help of technology I have come out with a solution with the help of technology to create to reach out to that problem. So that is the reason why I say कि hassle premium, बड़ी बड़ी problems को identify करके उसको with the help of technology मैंने उसको कैसे solve किया. Fourth, most important, brand integration. Fifth, problem solving products. Now when I say brand integration, so most important is कि जो भी product service concept अपने बना रहे हैं या लाने की तैयारी कर रहे हैं, हम उसको market में position कैसे करने वाले हैं, हम उसकी पोजीशनिंग कैसे कर रहे हैं, हम उसका टारगेट ऑडियंस कैसे डिसाइड कर रहे हैं, हम ब्रांडिंग के लिए क्या करने वाले हैं. आप देखोगे कई सारे ब्रांड्स होती हैं जिसकी टैग लाइन्स होती है, लाइक फॉर एग्जांपल इफ यू सी एनी लेटेस्ट एड्स, तो लेट्स सी थम्स अप की एड आती है, सलमान खान आता है जिसमें वो बोलता है टेस्ट द थंडर, सो दैट्स द टैग लाइन. तो दैट्स वेरी इजी, वो आपकी ब्रांड रिकॉल पोजीशनिंग होती है. तो जो आप कोई भी एक कंसेप्ट बना रहे हो, आप कोई भी एक प्रोडक्ट बना रहे हो, तो आप उसको ब्रांड और उस ब्रांड को कैसे टैग करने वाले हो, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट्स, बहुत बार हम देखते हैं कि लोगों का एंटरप्रेन्योर्स वो इस किस्म के प्रोडक्ट्स लेके आते हैं जो मार्केट में ऑलरेडी बहुत साल पहले आ चुके थे, बट रियली अगर प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट्स लाने हैं तो मतलब मुझे वो आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे कि मेरे रीजन में, मेरे सिटी में, मेरी कंट्री में, मेरे डिस्ट्रिक्ट में व्हाट आर दी जेन्युइन प्रॉब्लम्स, और उसको प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैं क्या कंसेप्ट, इनोवेटिव सॉल्यूशंस कैसे लेके आ रहा हूँ. सो इट्स ऑल अबाउट think about the innovative ideas and innovative solutions, which is something that you will have to really work on. मार्केट पेनिट्रेशन कैसे करा जाएगा. सो अगर आपने एक प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया, आपने कंसेप्ट बना लिया, आपने सर्विस भी बना ली, बट हाउ आर यू गोइंग टू पेनिट्रेट टू द मार्केट. सो एज वी ऑल अंडरस्टैंड कि हम पहले पायलट प्रोजेक्ट करते हैं, पायलट प्रोजेक्ट में से हम फीडबैक लेते हैं और फिर उसके बाद हम उसको स्केल करने की कोशिश करते हैं. सो मोस्ट इंपॉर्टेंट इज हाउ आर यू गोइंग टू पेनिट्रेट योर मार्केट. आप अपने प्रोडक्ट को कैसे लॉन्च करने वाले हैं, आप अपने प्रोडक्ट को कैसे पोजीशनिंग करने वाले हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. आप अपने आप को कैसे प्रोडक्ट आप अपने आप को कैसे पोजीशनिंग करने वाले हो, आपके प्रोडक्ट की यूएसपी क्या है, व्हाट इज दैट वन सिंगल थिंग व्हिच इज देयर इन योर दैट प्रोडक्ट, स्टार्टअप, कंसेप्ट, सर्विस इज व्हाट इज टू बी टोल्ड टू द कस्टमर. ओके, हम क्या सोचते हैं कि जब भी हम कोई एक प्रोडक्ट या कोई हम अपना स्टार्टअप लॉन्च करते हैं, तो जब हम उस एंटरप्रेन्योर को पूछते हैं कि आपका कस्टमर कौन होने वाला है, या हु आर द प्रोबेबल कस्टमर्स, एंड द फर्स्ट आंसर दैट आई कम टू गेट इज हर कोई मेरा कस्टमर बन सकता है. एंड दैट इज वेयर आई स्टॉप देम एंड आई टेल देम हमारा प्रोडक्ट इज नॉट मेंट फॉर एवरीवन. सो यू नीड टू सी कि मेरा प्रोडक्ट कौन से टारगेट ऑडियंस के ऊपर जाने वाला है. जिस टारगेट ऑडियंस को हम वो प्रोडक्ट और कंसेप्ट लॉन्च करने वाले, उस टारगेट ऑडियंस का थॉट प्रोसेस क्या होता है, उसके अंदर जाके मुझे अपना प्रोडक्ट पोजीशनिंग, मार्केट पोजीशनिंग करनी होती है. ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन कैसे करेंगे. वंस यू डन द पायलट प्रोजेक्ट, आपने एक रूट समझ लिया, देख लिया, आपने एक टेस्टिंग कर लिया, उसके बाद आप इसको एक्सपैंड कैसे करने वाले हो, दैट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट. एक्सपेंशन का मतलब है कि मैं इसको स्केल कैसे करने वाला हूँ. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज जब हम स्टार्टअप शुरू करते हैं या मैं अपना बिजनेस शुरू कर रहा हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज मैंने इसको क्या सोच के शुरू किया था. आई सी लॉट ऑफ एंटरप्रेन्योर्स एंड एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर्स, जब वो कॉलेज में से बाहर निकलते हैं और जब उनको थॉट प्रोसेस हम पूछते हैं कि भाई आपने ये क्यों शुरू किया अपना स्टार्टअप, एंड द फर्स्ट आंसर दैट आई गेट इज कि सर आप लोग अपने पास बहुत एक ब्रिलियंट फैंटास्टिक आइडिया है, ये 1-2 साल में तो मैं इसको 1 करोड़ में बेच दूंगा किसी को भी, एंड मैं तो अपना फिर दूसरा स्टार्टअप शुरू करूंगा. एंड आई ऑलवेज टेल देम, हमारे गुजराती में एक कहावत है, बिजनेस ना पहला 1000 दिवस. फर्स्ट 1000 days you will have to make sure that your business survives, sustains, and then उसके बाद आप उसको स्केल अप कर सकोगे, और उसके बाद आप उसको सोच सकोगे कि मैं किसी के पास जाऊं बिजनेस के फंडिंग की रिक्वायरमेंट के लिए. बेचना तो बहुत दूर की बात है.
आपने स्टार्टअप शुरू किया था उसको नॉट, तो जो हमारा विजन है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि मैं अपना स्टार्टअप क्यों शुरू कर रहा हूं, व्हाट विथ व्हाट विजन इज व्हाट यू आर स्टार्टिंग योर स्टार्टअप। प्रोडक्ट स्ट्रेटेजी, ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन जैसा अभी मैंने बताया, उसके बाद दी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग प्रोडक्ट स्ट्रेटेजी कैसे बनाए, यू नो प्रोडक्ट स्ट्रेटेजी, प्रोडक्ट पोजीशनिंग, अपनी ब्रांड की पोजीशनिंग, ब्रांड का मैसेज, मासेस को जब कोई कैंपेन शुरू करोगे तो उसमें क्या मैसेज आप देना चाहते हो। जे कर्व बिजनेस ग्रोथ, यू नो जब भी कोई बिजनेस शुरू होता है तो यू नो जब आप एक लेवल पे आओगे तो उसके बाद एक वो जे कर्व ग्रोथ लेता है। हाउ आर यू रेडी फॉर दैट स्ट्रैटेजी। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट, जब हम प्रोडक्ट स्ट्रैटेजी बनाते हैं तो हम गो टू मार्केट स्ट्रैटेजी भी बनाते हैं, बिजनेस डेवलपमेंट स्ट्रैटेजीज बनाते हैं। और ये जो पॉइंट्स मैं आप लोगों को बता रहा हूं, यू नो ये पॉइंट्स वो पॉइंट्स हैं जहां पे आप लोगों को इसके बारे में सोचना है एंड यू हैव टू आइडेंटिफाई कि मैंने इसमें से कौन सी पॉइंट्स के ऊपर फोकस नहीं किया है, या मैंने कौन सा नहीं सोचा है, या कौन सी पॉइंट्स के ऊपर मैं वीक हूं, कमजोर हूं। ये जो 12-13 पॉइंट्स हैं इसमें हर कोई इसका एक्सपर्ट नहीं हो सकता है। सो इसीलिए जब वो टीम बनाई जाती है एक स्टार्टअप में तो यू नो एक फाउंडर होता है और उसके साथ को फाउंडिंग टीम होती है। सो आई विल कम टू दैट आल्सो इन द नेक्स्ट लाइन। लो कॉस्ट कंपटीशन, वेरी इंपॉर्टेंट एंड अ वेरी चैलेंजिंग थिंग कि जब हम कोई एक स्टार्टअप शुरू करते हैं उस स्टार्टअप में ऑलरेडी बिकॉज हम वो मोनोपोली प्रोडक्ट में नहीं होते हैं, मोनोपोली सर्विस में नहीं होते हैं, सो लो कॉस्ट कंपटीशन अगर है तो हम उसको कैसे बीट करेंगे। सो दिस आर समथिंग, ये वो पॉइंट्स हैं जब एक स्टार्टअप, जब एक एंटरप्रेन्योर सोच रहा होता है कि मुझे स्टार्ट करनी है, तो ये 12-13 पॉइंट्स हैं जिसके बारे में उसे सोचना चाहिए, उसके बारे में बैठ के ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस करने चाहिए। चाहे वो अपने एचओडी के साथ बैठ के डिस्कस करे, चाहे वो अपने फैमिली के साथ बैठ के डिस्कस करे, अपने पार्टनर्स को फाउंडिंग टीम है उनके साथ बैठ के डिस्कस करे, या फिर इंडस्ट्री में अगर वो किसी को जानता है तो वहां पे वो एज अ मेंटर इंडस्ट्री एक्सपर्ट के साथ मिलके वो डिस्कस करे। ओके तो ये वो पॉइंट्स हैं कि ये स्टूडेंट्स को अगर आप लोग को ये समझ में आ जाए तो आई एम श्योर नो वन विल बी एबल टू स्टॉप यू फ्रॉम बिकमिंग अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर। यू नो तो मैंने जैसा बताया कि मेरी चाह है कि मुझे एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनना है, बट उसके सामने मैं करता क्या हूं। सो क्या मैं शिकायतें कर रहा हूं बार बार, या मैं कोशिशें कर रहा हूं बार बार। तो कोशिश करने वालों की हमेशा जीत होती है, एंड दैट इज व्हाट समथिंग दैट यू नीड टू रिमेंबर। एंड उसके अलावा ये जो 12-13 पॉइंट्स मैंने आपको बताए, इसके साथ साथ आप लोगों को और देखना है कि मार्केट इवैल्यूएशन कैसे होगा, ज्योग्राफिकल रीच कैसे होगी, आपकी पर्सनल ब्रांडिंग कैसे होगी, यू नो व्हाट मैसेजेस और क्या टैगलाइन आप अपने कस्टमर्स को देना चाहोगे, आप अपनी खुद की ब्रांडिंग कैसे करना चाहोगे। जब आप किसी कस्टमर के सामने बैठे हो या आप किसी इकोसिस्टम में अपने पार्टनर्स के साथ बैठे हो, व्हाट इज इट दैट आप अपने बारे में कैसे उनको इंट्रोड्यूस करते हो। यू नो रिमेंबर, जब हम नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट इज योर फर्स्ट 1 मिनट, बिकॉज दैट 1 मिनट will leave that impression, and it is always said that your first impression is your last impression. So that first 1 minute 60 seconds are very crucial in your life. वो आपको रटा हुआ होना चाहिए। जब हम किसी कस्टमर के सामने जाके बैठता हूं या मैं किसी इंडस्ट्री पार्टनर के सामने बैठता हूं और वो अगर आपको पूछता है कि आप क्या स्टार्टअप बनाना चाहते हो या आप क्या स्टार्टअप कर रहे हो एंड हु आर यू, सो विच मीन मुझे अपना भी इंट्रोडक्शन देना है और मुझे अपना स्टार्टअप के बारे में भी इंट्रोडक्शन देना है, और मेरा उस 60 सेकंड्स के अंदर मुझे अपना विजन भी बताना है कि मैंने ये स्टार्टअप क्यों शुरू किया है और इसके पीछे मेरा लॉजिक और विजन और मिशन क्या था, व्हाट इज द प्रॉब्लम दैट आई हैड आइडेंटिफाइड एंड रिसर्च किया था, उसके बेसिस के ऊपर दिस आर द प्रॉब्लम्स, और ये उसके सॉल्यूशन के लिए आई हैव स्टार्टेड दिस स्टार्टअप। सो दैट इज ये होता है आपकी पर्सनल ब्रांडिंग। उसके अलावा आप प्रोडक्ट कंसेप्ट, जैसा मैंने आपको बताया कि उसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट गो टू मार्केट स्ट्रैटेजी, आपकी मार्केटिंग टेक्निक्स क्या है, मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज क्या है, हाउ आर यू गोइंग टू लॉन्च योरसेल्फ। जब हम नया स्टार्टअप शुरू करते हैं तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है कि मेरे प्रोडक्ट, मेरा कंसेप्ट, मेरा आइडिया को पब्लिक मार्केट बाद में देखेगा, पहले मुझे देखेगा। सो मैं अपने आप को कैसे प्रेजेंट करने वाला हूं लोगों के सामने इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एज आई सेड, योर फर्स्ट इंप्रेशन इज योर लास्ट इंप्रेशन। So what are your marketing techniques? What are your marketing strategies? What is your call to action plan? जब हम कभी कोई कैंपेन करना चाहते हैं, कभी कोई
चाहे डिजिटल मीडिया पे कैंपेन करो, सोशल मीडिया पे कैंपेन करो, व्हाट इज द कॉल टू एक्शन? आप देखोगे बहुत सारी एडवर्टीजमेंट्स होती है जिसमें नीचे एक नंबर दिया जाता है लोगों को, और वो कहा जाता है कि इस नंबर पे कॉल करोगे तो यू विल गेट सो एंड सो XYZ बेनिफिट। सो दोज आर कॉल टू एक्शन। आप क्या कर रहे हो? मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट आई हैव सीन इज हमारी टीम की वो जो बुनियाद हम रखते हैं, तो हम टीम कैसे बनाते हैं, दैट इज समथिंग विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वन ऑफ द मेजर रीजन दी स्टार्टअप्स जो फेल होते हैं, जब मैं अपने इसके बाद वाला पॉइंट्स कवर करूंगा, सो देयर आर अबाउट 12-13 पॉइंट्स व्हाई स्टार्टअप फेल, एंड दैट इज समथिंग दैट वी रियली नीड टू अंडरस्टैंड कि स्टार्टअप्स फेल क्यों होते हैं। और उसका वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इज टीम। Across India, I have seen so many startups जो फेल हो गए just because 3-4-5 दोस्तों ने मिलके एक स्टार्टअप शुरू किया था, और उन्होंने सोचा था कि वी आर बेस्ट फ्रेंड्स एंड वील बिकम अ गुड बिजनेसमैन ऑल्सो एंड वील बिकम गुड टीम, बट unfortunately they couldn't become a good team because they were good at friends but they were not good in business, because business में फ्रेंडशिप से ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट इज कि आपकी टीम की स्ट्रैटेजी और आपकी टीम की स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या है। सो दैट इज समथिंग दैट वो नहीं किया गया था। सो इसके लिए टीम में हम एक सिंपल डेफिनेशन समझाते हैं कि अपनी टीम के जो भी फाउंडर को फाउंडर्स होते हैं उनके स्वॉट एनालिसिस करनी चाहिए एंड अपने रोल्स डिफाइन होने चाहिए। तो उसका एक सिंपल कंसेप्ट होता है RACI, राशि। दैट इज हाउ वी डिफाइन, जब हम मेंटर करते हैं स्टार्टअप्स को और एंटरप्रेन्योर्स को, तो R स्टैंड्स फॉर रिस्पॉन्सिबल कौन है, A इज अकाउंटेबल कौन है, C इज कंसल्ट किसको किया है, एंड I इज इन्फॉर्म किसको किया है, मतलब कौन है। सो दिस इज RACI, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जब हम अपनी टीम बनाते हैं। सो फाउंडर, को फाउंडर और उसके अलावा जो हमारी कोर मैनेजमेंट टीम होती है, जो मेरी सबसे पहली टीम होती है, जो मेरे स्टार्टअप का बुनियाद रखती है, वो टीम की स्वॉट एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। अदरवाइज व्हाट विल हैपन इज, जब वो स्टार्टअप बंद होता है, शट डाउन का बोर्ड लग जाता है, तो वो स्टार्टअप तो बंद होता है लेकिन साथ में अपनी दोस्ती भी खत्म हो जाती है, बिकॉज हर एक ने अपना पैसा, टाइम, एनर्जी और वो सब लगाया होता है। सो नेवर डू दोज मिस्टेक्स। अगर अपने दोस्ती के बीच में अगर अपना स्टार्टअप शुरू करना चाहते हो, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उसका स्वॉट एनालिसिस कर लो, पहले से डिफाइन कर लो कि कौन सा फ्रेंड कौन सा रोल करने वाला है, बिकॉज बिजनेस में एज आई सेड फ्रेंडशिप से ज्यादा देर आर 7-8 डिफरेंट डिपार्टमेंट्स विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और उसी के दम के ऊपर हमें पता चलेगा कि ये स्टार्टअप सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा। So, as I said, the most startups, fail because they are good at planning, but they fail to execute क्योंकि हमने वो टीम का SWOT analysis नहीं किया था, and that is going to make a difference in your life. If you are good at execution, you are going to excel and become a successful entrepreneur. Okay, so दूसरा. Okay, so now I have one more important question. All those who are watching us live on FB, आपको ये अपने आप को सवाल का जवाब देना है, मुझे नहीं देना है, बट जो ये सुन रहे हैं उनके लिए ये क्वेश्चन है कि अपने स्वर्णिम यूनिवर्सिटी में जो भी आप कोर्स ज्वाइन कर रहे हो, उस कोर्स में ज्वाइन करने के बाद आपने अगला विजन क्या लिया है अपने लिए, मतलब आपने अपनी लाइफ के बारे में क्या सोचा है। तो I'll give you a small example. Someone would think कि मतलब मैं जॉब करना चाहता हूँ, someone might have family run business, so मैं family run business में जाना चाहता हूँ, और the third option is कि नहीं मैं तो अपना एंटरप्रेन्योरल जर्नी शुरू करना चाहता हूँ, एंड देयर आर ये तीन तो सिंपल है। चौथा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे व्हेन वी इंटरेक्ट, जब मैं अक्रॉस इंडिया ट्रैवल करता हूँ और मैं इंटरेक्ट करता हूँ लोगों के साथ, तो मुझे ये भी समझ में आता है कि इन तीनों के बाद एक चौथा ऑप्शन भी है, विच इज नन ऑफ द अबव, बिकॉज अभी तक मेरे दिमाग में वो केमिकल लोचा है, मैं अभी तक क्लियर नहीं हूँ कि मुझे अपने ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद क्या करना है, अभी तक मैंने सोचा नहीं है, या अभी मैंने आई एम नॉट क्लियर अबाउट इट। सो नथिंग टू वरी अबाउट इट, इज जस्ट दैट आप जितना जल्दी क्लियर हो जाओगे उतनी ही जल्दी आप अपनी लाइफ में उस पाथ पे चलने की तैयारी करोगे। So that is absolutely fine. There's nothing wrong in it, but just get the clarity about what you want to do in your life.
after you complete your studies. जो भी दिस विजन, जैसे जब हम फर्स्ट ईयर में पढ़ रहे थे तो हमें ऐसा लग रहा था कि मैं तो ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ. फाइनल ईयर तक आते आते फिर अगेन वो थॉट प्रोसेस चेंज हो जाता है. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने रिव्यूज, अपने पीरियोडिकल, अपनी स्ट्रैटेजीज, प्लान्स, एक्शंस को आप कंटिन्यूसली रिव्यू करते रहें, रीइवैल्यूएट करते रहे. उसी तरह आप अपने जो आपने अपना जो विजन बना है या जो आपका सोच चल रहा है, आप इसको अपने पेरेंट्स, अपने फैमिली, अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव्स, अपने कलीग्स, अपने यार दोस्त, सबके साथ डिस्कस करो कि मेरे थॉट प्रोसेस क्या चल रही है. दैट इज रियली समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू डिस्कस. इसके अलावा द अदर थिंग इज जो बिजनेस आप जब आप अपना एंटरप्रेन्योरल जर्नी शुरू करोगे तो इसके अलावा जो आपको फोकस करना आएगा, that is, I'll just give you some trigger and some bullet points on that, is about your key performance indicators. आप अपने SOPs कैसे बनाओगे, आप अपने सेल्स मॉडल कैसे बनाओगे, आप अपना डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क कैसे बनाना चाहते हो, आप अपना कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस कैसे करोगे, डिसीजन मेकिंग एबिलिटी. सो डिसीजन मेकिंग के लिए व्हाट इज द थॉट प्रोसेस दैट यू आर गोइंग. मोस्ट इंपॉर्टेंट, जब कोई प्रोडक्ट कंसेप्ट और वो लेके आता है तो देयर आर प्रोडक्ट्स जो सीजनल प्रोडक्ट्स होते हैं. जितने भी जो एग्रीटेक से रिलेटेड लोग होंगे उनको ये समझ में आएगा कि देयर आर फ्यू प्रोडक्ट्स जो सीजनल प्रोडक्ट्स होते हैं. तो अगर इफ देयर आर सीजनल प्रोडक्ट्स, तो अगर उसका ऑफ सीजन होगा तो उस ऑफ सीजन पे हाउ आर यू गोइंग टू फोकस, और मेरी ऑफ सीजन की स्ट्रैटेजी क्या होगी. बिजनेस रेवेन्यू मॉडल कैसा होना चाहिए. फॉर एग्जांपल, मैं डायरेक्ट बिजनेस करूंगा, मैं चैनल नेटवर्क बनाऊंगा, मैं डीलर्स बनाऊंगा, सो मेरा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क कैसा होना चाहिए. दिस आर फ्यू सम अदर पॉइंट्स जो आपको ये सोचना चाहिए जब अपना बिजनेस आप जब शुरू करने की तैयारी करोगे. इवन इफ इट इज अ टेक्नोलॉजी बेस्ड स्टार्टअप, यू विल स्टिल नीड टू फाइंड आउट इफ देयर इज अ प्रॉब्लम, इफ देयर इज अ सॉल्यूशन. आपने एक अच्छा सा सॉफ्टवेयर बना लिया, आपने एक अच्छी सी ऐप बना ली, आपने एक अच्छा सा पोर्टल बना लिया, हाउ आर यू गोइंग टू रीच आउट टू द कस्टमर्स इज समथिंग दैट यू विल हैव टू थिंक अबाउट इट. तो ये जो सो दैट इज समथिंग दैट यू विल हैव टू थिंक. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो हम देखते हैं और जो हम समझ रहे हैं इज सीखने का, लर्निंग. जब हम बहुत सारे सेशंस अटेंड करते हैं तो इनिशियली फर्स्ट 1 आवर का जो सेशन होता है दैट इज ओनली अबाउट माइंडसेट. पहले तो हम उनका दिमाग को खोलने की तैयारी करते हैं, बिकॉज कई सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हम देखते हैं जब वो कैंडिडेट्स या पार्टिसिपेंट्स आके बैठे होते हैं, सो दे कम विद दैट रिजिड माइंडसेट, एंड द रिजिड माइंडसेट इज बिकॉज वो ये सब समझते हैं कि मेरे को सब कुछ आता है, मुझे सब कुछ पता है, मने बद्दू आवड़े छे. दैट इज व्हाट देयर उनके दिमाग में, और जो जिनके दिमाग में ये बातें चलती हैं कि मुझे सब कुछ आता है, तो हम वो उनको पहले उनके वो दिमाग में से वो केमिकल लोचा जो होता है, हम उसको पहले ठीक करने की कोशिश करते हैं कि अगर आपको सब कुछ आता होता, तो अगर आप सब कुछ जानते होते तो फिर तो क्या चाहता था. लुक एट द बेस्ट ऑफ द बेस्ट सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स इन द वर्ल्ड या सक्सेसफुल इंडस्ट्रियलिस्ट इन दी वर्ल्ड, वो भी आज ट्रेनिंग कर लेते हैं, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स अटेंड करते हैं. बिकॉज आई ऑलवेज टेल इवन द बेस्ट ब्रेन इन दी वर्ल्ड नीड्स टू बी ट्रेन्ड. सो एक लर्निंग इज समथिंग दैट यू विल ऑलवेज हैव टू बी कम. आप जब भी कोई भी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में आओगे या जब ये स्वर्णिम यूनिवर्सिटी जब भी अपने प्रोग्राम्स करती हैं आप लोगों के लिए, जब कोई इंडस्ट्री एक्सपर्ट आता है आपसे उनकी खुद की जर्नी शेयर करने के लिए, तो वो बेसिकली उन्होंने जो प्रॉब्लम्स फेस किए वो आपको बताने की कोशिश कर रहा है, ताकि आप वो प्रॉब्लम्स फेस ना करो, आपको वो चैलेंजेस ना आए, आप इसलिए वो आते हैं. सो यू ऑलवेज बी ओपन माइंड से आना, अपने कभी भी कोई भी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स अटेंड करो, बिकॉज लर्निंग की कोई उम्र नहीं होती. सीखने का कोई सही या गलत समय नहीं होता, सीखने की कोई सही या गलत उम्र नहीं होती. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू लर्न, सी एंड एक्सपीरियंस दी थिंग्स, और उसी से ज्यादा वो करना है. सो आई ऑलवेज टेल कि अगर आज आप कमाई से ज्यादा मेहनत करते हो तो बहुत जल्दी आपको मेहनत से ज्यादा कमाई मिलेगी. When you give more than what you get, soon you get more than what you give.
तो जब हम स्टार्टअप शुरू करने की तैयारी करते हैं तो इट इज समथिंग लाइक कि आपने स्विमिंग सीखना शुरू किया और आप नदी के किनारे खड़े हो और अभी आप बोल रहे हो कि मुझे नदी पार करके वो बाजू जाना है, लेकिन वो नदी के किनारे पे खड़े रह के देखने से तो कुछ नहीं होने वाला है। अपने को नदी के अंदर कूदना पड़ेगा और उसकी ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। स्विमिंग कोच होते हैं जो स्विमिंग सिखाते हैं और उसके बाद हम उसमें से सीखते हैं। सो नदी के किनारे खड़े रह के खाली उस लहरों को देखने वाले कभी भी सक्सेसफुल नहीं बन सकेंगे, बट उस नदी में अंदर कूद के उसमें से तैर के जो तर के बाहर निकलेंगे, दे विल एक्चुअली बिकम दी सक्सेसफुल। सो माय पॉइंट इज, जब आप अपने स्टार्टअप के बारे में सोच रहे हो या करने का प्लान कर रहे हो, सो यू विल हैव टू थिंक अबाउट इनिशिएटिव्स। आप क्या इनिशिएटिव्स लेने वाले हो, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप इनिशिएटिव मतलब आप क्या सोच रहे हो, अपना क्या प्लान बना रहे हो, उस प्लान को कैसे एग्जीक्यूट करने वाले हो, is that something that you will have to really focus on, and you have to continuously think about it। सोचते ही उसमें से रास्ता निकलेगा और उसमें से आप अपनी एग्जीक्यूशन स्ट्रैटेजीज तैयार कर सकोगे और बना सकोगे। सो व्हेन यू फोकस ओनली ऑन रिजल्ट, you don't get the change, but you change yourself, you will get the result। so ये कुछ सीक्रेट टिप्स हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। so when you focus only on result, you don't get the change, but you change yourself, you will get the result। फल पे फोकस नहीं करना है आपको, वो कर्म और वो इनिशिएटिव्स पे फोकस करना है जिससे आप आगे बढ़ सके, आपका बिजनेस आगे बढ़ सके। नेवर स्टॉप लर्निंग एंड ऑलवेज रिमाइंड एंड टेल योरसेल्फ, मैं इतनी दूर आया हूं यहाँ पे खड़े रहने के लिए नहीं और आगे जाने के लिए। ओके, सो दिस आर ऑल दी लाइंस। ये वो पंच लाइंस हैं जो जितने भी हम स्टार्टअप्स को मेंटर करते हैं तो उनके वहां पे हमने उनके जो भी फाउंडर का एक क्यूबिकल होता है या कैबिन होता है, उसके वहां पे वो लगा के रखे। मेरे ऑफिस में मेरी कैबिन में लगा के रखा हुआ है मैंने खुद, कि मतलब मैं इतनी दूर आया हूं यहाँ रहने के लिए नहीं और आगे जाने के लिए। ओके, सो आज 11 साल पहले मैंने जब अपनी जर्नी शुरू करी, तो आज जिस मुकाम पे मैं पहुंचा हूं, उस मुकाम पे रहने के लिए मैं यहाँ तक नहीं आया हूं। मैं इस मुकाम से भी ऊपर जाने की तैयारी कर रहा हूं, उसके लिए मैं और भी मेहनत करता हूं और उसके लिए मैं और भी लर्निंग करता हूं और भी ट्रेनिंग करता हूं और भी सीखता हूं, सो दैट जो गलतियां मैंने पिछले 11 साल में करी उसको सुधार सकूं और जो ग्रोथ मैंने पिछले 11 साल में लिया था उससे अच्छा ग्रोथ मैं अगले 5 साल में कर सकूं। एंड दैट इज द रीजन व्हाई दिस लाइन आई हैव ऑलवेज केप्ट इन माय कैबिन। मैं इतनी दूर आया हूं यहाँ रहने के लिए नहीं और आगे जाने के लिए। लर्न एंड अंडरस्टैंड फ्रॉम व्हाई द स्टार्टअप्स और एनी अदर बिजनेस फेल्स। अगर अपने को ये गलतियां समझ में आ जाए और जो जितने ये एक्सपीरियंस इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स आते हैं और जो अपना अनुभव अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं आपके साथ, तो वो बेसिकली उन्होंने जो गलतियां करी वो आके आपके साथ वो डिस्कस करते हैं, सो दैट यू डोंट डू दिस मिस्टेक्स एंड यू will become a more successful and much better successful entrepreneur। and अगर हमें 5 से 7 साल लगे अपने बिजनेस को खड़ा करने के लिए, तो हमारे एक्सपीरियंस से हमारे अनुभव से आप वो गलतियां नहीं करोगे तो आप अगले 2 से 3 साल के अंदर आप एक्सेल कर जाओगे और आप अपने बिजनेस को ग्रो कर सकोगे। ओके, सो जैसा मैंने आपको बताया कि जो रिसेंट सर्वे हुआ था जो हम देख रहे थे वाज ऑन के why are the startups in India जो फेल हो रहे हैं। तो उसमें हमने एक ये देखा था कि 50,000 से ज्यादा इंडिया में स्टार्टअप शुरू होते हैं, लेकिन उसमें से 90% ऑफ द स्टार्टअप्स हैं जो पहले 3 साल में फेल हो जाते हैं। सो 50,000 में से 90% मतलब आप समझ लो कि 45,000 स्टार्टअप तो पहले 3 साल के अंदर ही फेल हो जाते हैं। बाकी बचे 5,000 स्टार्टअप, उसमें से अगेन 90% अगले 2 साल के अंदर फेल हो जाते हैं। तो उसका मतलब हुआ 49,000 स्टार्टअप्स पहले 5 साल के अंदर ही खत्म हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं, शटडाउन का बोर्ड लग जाता है। इट इज आउट ऑफ दैट 50,000 इट्स ओनली 700-800,000 स्टार्टअप्स जो आगे सक्सेसफुल बनते हैं। एंड बिलीव मी, जो ये 5 साल अपनी जर्नी के स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर्स के निकालते हैं, दे आर दी वंस
who will actually really excel, and they are the ones जिनको आगे जाके फंडिंग मिलेगी, वो एक्सपेंशन कर सकेंगे, वो ग्रो कर सकेंगे. सो वेरी इंपॉर्टेंट इज कि ये स्टार्टअप्स क्यों फेल हुए थे. यू नो, सो आई विल गिव यू ओनली द बुलेट पॉइंट्स. अदरवाइज ये एक एक टॉपिक के अंदर हम डिटेल में जाने लगेंगे तो यू नो, एज आई सेड, दिस आर लाइक अबाउट 6, 7, 8 आवर्स का सेशन. सो आई एम ओनली गोइंग टू गिव यू द बुलेट पॉइंट्स. जो ये सर्वे किया गया था, उस सर्वे के अंदर ये पॉइंट्स निकल के आए थे कि स्टार्टअप्स फेल क्यों हुए थे. So the first point was missing innovation around customers' money making model. As I said, कि customers को क्या हम देने वाले हैं solution, that is really very important. अगर हमने वो ध्यान में रखा है, rather than कि हम ये सोचे कि मैं क्या कमाऊंगा इस स्टार्टअप को शुरू करने से, the question that you need to ask yourself is, इस स्टार्टअप से सोसाइटी को, मेरे कस्टमर को क्या फायदा होने वाला है, उसके कौन से प्रॉब्लम है जो इस मेरे सॉल्यूशन से सॉल्व होने वाले हैं. व्हाई वुड ही टेक माय सर्विस, व्हाई वुड ही टेक दिस प्रोडक्ट, और व्हाई वुड सोसाइटी और द इकोसिस्टम टेक माय प्रोडक्ट और माय कंसेप्ट और माय सर्विस. यू नो, सो दैट इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि मैंने क्या इनोवेटिव सॉल्यूशन निकाला है फॉर कस्टमर्स एट लार्ज. ओके, इनोवेटिव, यू नो, सो इनोवेशन किधर होना चाहिए, यू नो, कस्टमर की नीड को समझने की कोशिश करें. सोसाइटी, इकोनॉमी, रीजन, स्टेट, कंट्री में क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या नीड है, उसका रिसर्च करके और उसके ऊपर अपना दिमाग को लगा के इनोवेटिव आइडियाज एंड सॉल्यूशंस बनाएं, सो दैट you know, the acceptability of that is going to be very high. Second is negative cash flows and negative working capital. जब हमने स्टार्टअप शुरू किया तब हमने सोचा नहीं था कि मुझे कितना पैसा लगेगा इस स्टार्टअप के अंदर. एक रफ कैलकुलेशन मैंने ले लिया था कि 2-5 लाख रुपए की जरूरत पड़ेगी, बट उससे ज्यादा मैंने अगले 3 साल की प्लानिंग नहीं करी. एंड दैट इज द रीजन आफ्टर 6 months, 8 months, 10 years, जो इनिशियल कैपिटल था वो तो सारा रिसर्च करने में और एक बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में चला गया. बट उसके बाद प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए प्लान नहीं था, प्रोडक्ट के लिए प्रोडक्ट की स्ट्रैटेजी नहीं थी, और प्रोडक्ट से जो रेवेन्यू आनी थी वो अगले 6 से 8 महीने में शुरू नहीं हुई. सो नेगेटिव कैश फ्लोज एंड नेगेटिव वर्किंग कैपिटल, दैट इज समथिंग दैट रियली, इसके ऊपर सबसे ज्यादा एंटरप्रेन्योर्स को सोचना चाहिए, प्लान करना चाहिए. बिकॉज फाइनेंसेस जितने अच्छे होंगे, कंट्रोल में होंगे, उतने ही सक्सेसफुल आप चल सकोगे. अदरवाइज व्हाट विल हैपन इज, एंड ऑफ द डे, एंड ऑफ द मंथ, यू विल ऑल बी वर्किंग, हम वो कैश क्रंच में आ जाएंगे, और उसके बाद हमारा दिमाग सिर्फ हमारे फाइनेंसेस के ऊपर चलेगा, हमारे इनोवेशन के ऊपर नहीं चलेगा. So that's second point. Third is expansion with negative returns. Fourth most important, मैंने पहले भी बताया, lack of manpower, team, including co-founder, founder. जब भी टीम बनाओगे तो उनके SWOT analysis जरूर करना. ये पता करना, जब भी अपनी co-founding टीम बनाओगे या जब भी अपनी core management टीम बनाओगे, तो कुछ सवाल है जो आपको उनको पूछना चाहिए, लाइक यू नो, वेदर दे आर रियली हाई पोटेंशियल है, हाई परफॉर्मेंस ओरिएंटेड टीम है, हाईली स्किल्ड टीम है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्या मेरे विजन और मिशन में ये मेरे साथ चल सकेंगे. सो आइदर, मतलब दे आर हाई एट विल, एनर्जेटिक, पॉजिटिव एनर्जेटिक हैं, और विद पॉजिटिव माइंडसेट है कि नहीं. यारी दोस्ती अपनी जगह पे है, बट व्हेन इट कम्स टू बिजनेस, जब यार दोस्त अपने घर पे बैठे होते हैं तो वो यार दोस्त होते हैं, लेकिन जब यार दोस्त ऑफिस में, जब अपनी कैबिन में बैठे होते हैं तो दे आर बिजनेस पार्टनर्स. वहां पे यारी दोस्ती से अच्छा है अपने बिजनेस के बारे में डिस्कस करें, और अपनी टीम के और अपने स्ट्रेंथ और वीकनेस के बारे में डिस्कस करें. Okay, so one more important quote: if you have a negative mindset, you cannot expect positive outcome. So as I said, the team is very important, particularly जब हम business start कर रहे हैं. तो मैं positive mindset वाला हूँ. क्या मेरी टीम भी उतनी ही energetic है? क्या मेरी टीम उतनी ही positive है? क्या मेरी टीम उतनी ही energetic और go getter वाली टीम है? That is something that you will have to really think, and then उसके बाद उस टीम को अपने साथ बनाओ. स्केलेबिलिटी विथ रिकरिंग मॉडल, यू नो, जब मैं बिजनेस एक्सपैंड करने का प्लान करता हूं तो मैं ये भी देखता हूं, ये सोचना चाहिए
कि रिकरिंग रेवेन्यू मॉडल क्या होगा, कस्टमर हमारे पास ऐसा क्या प्रोडक्ट और कंसेप्ट होगा कि जहां कस्टमर हमारे पास वापस आएगा। सो रिकरिंग इज जो आपको सोचना है। फोर्थ इज मिक्स्ड मार्केटिंग सिग्नल एंड रॉन्ग पोजिशनिंग, यू नो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि मैं प्रोडक्ट का पोजिशनिंग कैसे कर रहा हूँ, प्रोडक्ट लॉन्च कैसे कर रहा हूँ, प्रोडक्ट को पोजीशन कैसे कर रहा हूँ, और मैं कौन से मासेस और क्लासेस को टारगेट करने वाला हूँ, उसके लिए मेरी प्रोडक्ट स्ट्रेटेजी क्या है। Fifth, most important, releasing product as a laggard. You know, ये सबसे ज्यादा डेंजर वाली सिचुएशन होती है जब अभी हम लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हैं। एंड व्हेन स्टूडेंट्स जब हमारे पास आते हैं और वो ये कहते हैं कि हमारे पास एक बहुत ब्रिलियंट आइडिया है और अगर हमें फंडिंग मिल जाए तो हम कुछ भी कर सकते हैं, और जब हम वो आइडिया उनसे पूछते हैं तो हमें पता चलता है कि ये आइडिया में तो ऑलरेडी कितने सारे लोग अंदर आ चुके हैं। जस्ट बिकॉज इस स्टार्टअप को अभी किसी कहीं ने कहीं से फंडिंग मिला है तो स्टूडेंट का इंटरेस्ट सडनली जागा उसके अंदर। सो जैसे फॉर एग्जांपल बिग बास्केट आया, ग्रोफोर्स आया, तो ये ग्रोसरी चेन स्टोर में ये लोगों ने नाम आया, उसके पीछे अमेजोन आ गया, फ्लिपकार्ट आ गया, एंड देन सडनली वी सी अ रश ऑफ एंटरप्रेन्योर्स जो इसके पीछे लग गए थे कि बिकॉज दे थॉट कि इट इज वेरी इजी, बट बिलीव मी दैट इज नॉट सो इजी। एनी स्टार्टअप आपका इंटरेस्ट, यू विल हैव टू रियली सी कि मेरा इंटरेस्ट कहाँ है, मेरी स्ट्रेंथ कहाँ है, मेरी टीम की स्ट्रेंथ कहाँ है। डू नॉट जस्ट कॉपी पेस्ट एनी अदर मॉडल, बिकॉज वो मॉडल आ चुका है, उसमें बहुत सारे लोग अंदर आ चुके हैं। सो व्हाई डू यू वांट टू बी अ लेट एंट्रेंट इनटू दैट मार्केट जहां पे ऑलरेडी इतने सारे स्टार्टअप आ चुके हैं। सेव योरसेल्फ फ्रॉम गेटिंग आउट कॉम्पीटेड। जब भी आप शुरुआत करोगे, एज आई सेड, लर्निंग इज नेवर स्टॉप लर्निंग, बिकॉज अगर आपने सीखना बंद कर दिया तो समझ लेना आपके बिजनेस की ग्रोथ रुक गई और कंपटीशन आपसे आगे निकल जाएगा। बिकॉज कंपटीशन तो सीख रहा है, वो नेटवर्किंग कर रहा है, वो आपके आजू बाजू बैठ के मार्केट को स्टडी कर रहा है और वो आपसे आगे बढ़ने के लिए तैयारी बैठा है। मिसिंग द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग फीडबैक टू फीड फॉरवर्ड, वेरी इंपॉर्टेंट। जब हम कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, कंसेप्ट सर्विस बनाते हैं, लॉन्च करते हैं, सो जब हम पायलट प्रोजेक्ट करते हैं तो पायलट प्रोजेक्ट में से हमें रिस्पॉन्स मिलता है, हमें फीडबैक मिलता है। उस फीडबैक में से हम हमारे प्रोडक्ट और सर्विस को कितना इंप्रूव करते हैं, कैसे इंप्रूव करते हैं, कितना फास्ट उसको इंप्रूव करके वापस मार्केट में रीलॉन्च करते हैं। दैट इज समथिंग विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कस्टमर का फीडबैक इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो जब कभी हम एक नया स्टार्टअप शुरू करते हैं, यू मस्ट ऑलवेज गो बैक टू योर कस्टमर हु इज यूजिंग योर प्रोडक्ट, सर्विस, कंसेप्ट, और उससे जाके फीडबैक लो, बिकॉज दैट दे आर द एंड यूजर्स एंड दे विल रियली गिव यू अ ऑनेस्ट फीडबैक एज टू हाउ योर प्रोडक्ट एंड कंसेप्ट इज। बट हम क्या करते हैं, हम कस्टमर तक पहुंचते ही नहीं है और हमें रियली ग्राउंड का फीडबैक का पता नहीं चलता है, विच इज वेयर मोस्ट ऑफ द स्टार्टअप्स वुड देन अगेन फेल। सो डोंट रिपीट दोज मिस्टेक्स। ओके, एज आई सेड, पायलट प्रोजेक्ट जब हम कर रहे होते हैं तो दैट इज माय फर्स्ट प्रोडक्ट, बट माय फर्स्ट प्रोडक्ट जब मैंने कुछ नया इनोवेटिव लॉन्च किया तो दैट विल नेवर बी माय फाइनल प्रोडक्ट, बिकॉज जैसे जैसे हमें फीडबैक मिलता है हम उसके ऊपर और रिसर्च करके उसको अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं और उसके बाद हम फाइनल प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं। Business model of building complete ecosystem. This is something which is very important, because क्या मैं अकेले ही अकेले काम करना चाहता हूँ, मैं अकेले ही काम कर रहा हूँ, या मैं अपने सराउंडिंग में पूरा इकोसिस्टम लेके बैठता हूँ, तो मैं उस पूरे इकोसिस्टम में मेरे पार्टनर्स, वेंडर्स, सप्लायर्स सबके बारे में सोचता हूँ। ऑलवेज look at your ecosystem, who is going to be your customer, who's going to be your vendor, who's going to be your supplier, who's going to be your buyer, and most important your team. So ये पूरा ecosystem बनता है, so these are few tips जो मैं हमेशा शेयर करता हूँ अपने बजिंग एंटरप्रेन्योर्स के साथ। ये वो गलतियां हैं जो एंटरप्रेन्योर्स करते हैं, डोंट रिपीट। आप इसके बारे में अच्छे से थॉट प्रोसेस करो। इट इज ऑलवेज बेटर कि मैं पहले सारा कुछ सोच लूं और उसके बाद मैं स्ट्रेटेजी बनाऊं और उसके बाद मैं उसके ऊपर एग्जीक्यूशन करूं। बहुत बार हम लोगों को मिलते हैं जहां पे वो लोग ने सब कुछ कर दिया होता है और मतलब वो लॉन्च कर गए, सब तैयारी करके बैठ गए, अब वो सोच रहे हैं कि अब आगे क्या करना है। That's absolutely a wrong way of doing. The best way of doing is, even आप 2 महीना लेट भी लॉन्च करोगे या 2 महीने के बाद भी मार्केट में आओगे,
but you are very clear as to what you are supposed to do. आप अपने पूरे प्रोडक्ट, अपने मार्केटेड और अपने मार्केट के साथ पूरे रेडी होके आते हो, and that will make you successful. Most important thing, so I'll take 5 more minutes. As I was saying, कि successful entrepreneurs की habits क्या होती हैं. So again, one more question I want to ask all the participants who are watching us. आप कितना समय देते अपना, आप what are the activities that you do, और टीवी कौन कितना देखता है? This is the question that you don't need to answer on FB, is something that you need to answer to yourself. आपको अपने आप को ये सवाल का जवाब देना है कि आप कितना घंटा, how many hours do you spend time on watching TV? Okay, so all the successful entrepreneurs, जिनको भी आप आपके जो भी आपके रोल मॉडल्स हैं या जो आपके आइकॉन्स हैं, जिनको आप अपना गुरु, मेंटर, रोल मॉडल मानते हो, अगर आप कभी भी उनकी बायोग्राफी या बायोपिक पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा that they would not be watching TV at all, because for them TV is absolutely an idiot box, because TV वो दिखाता है जो TV दिखाना चाहता है. They would spend more time on YouTube, Netflix, Amazon Prime, Hotstar, because वहाँ पे आप अपने मर्जी के चैनल्स देखने, आप अपने मर्जी के वेब सीरीज देख सकोगे, आप अपनी मर्जी के जो पिक्चर्स देखनी है वो देख सकोगे. देयर आर रियली वेरी गुड बायोपिक्स जो एक्चुअली एक एंटरप्रेन्योर को देखनी चाहिए ऑन दी सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स के ऊपर. How they became successful, just go and watch these movies. They are really very good, and more than movies, because again movie में वो limitation होती है क्योंकि उनको वो 2 घंटे 3 घंटे के अंदर खत्म करनी होती है. बट इनके नॉवेल्स हैं, इनके ऊपर बुक्स बनी है, इनकी बायोपिक आती है. जस्ट गो एंड पिक अप आपके रोल मॉडल की बायोपिक नॉवेल एंड जस्ट रीड, सो यू विल कम टू नो कि उनका थॉट प्रोसेस क्या होता है, वो कैसे सोचते हैं, क्या what makes them different than the others, so that is all given in their biopic books. I see youngsters को have that they have this habit कि वो गूगल पे और मोबाइल पे बैठ के पढ़ते हैं, बट बिलीव मी, जो बुक आप लेके बैठोगे उस बुक को उस टाइम पे जब आप पढ़ोगे, अपने मोबाइल को स्विच ऑफ करके थोड़ी देर के लिए रख दो. आप 10 पेज भी रोज पढ़ो, बट देन जस्ट हैव योर फोकस प्रॉपर ऑन दैट बुक. तो आप वो 10 पन्नों भी 10 pages, 20 pages, whatever pages that you are reading on that day, just be focused on that book, on that novel, because that will give you a lot of thought process of your role model, of your icon, as to what they think and वो क्या सोचते हैं और वो कैसे काम करते हैं. इंफॉर्मेशन सबके पास अवेलेबल होती है, इवन जो आपके आइकॉन्स या रोल मॉडल्स थे उनके पास भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल थी. आप लोगों के पास भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है. गूगल सबसे बड़ा इंफॉर्मेशन का सोर्स है, पूरा भंडार है इंफॉर्मेशन का. बट मोस्ट इंपॉर्टेंट इज नॉट द इंफॉर्मेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट इज जो इंफॉर्मेशन आपके पास आई, आपने उसमें से कैसे उसको एनालाइज किया, उसमें आपने क्या देखा, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट आप उसके बाद उसको कैसे इंप्लीमेंट करते हो. सो सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स डू 2 things. One, they don't watch TV, they spend more time on reading, and second, they work on the implementation and not on the information. So with this, I would end. Anything that you want to ask, या और किसी को कुछ पूछना है तो then definitely FB पे वो पूछ सकते हैं, या later on वो अपने questions दे सकते हैं, तो we can definitely address the questions later on. Yes, thank Yes, you very much. Sir, what an inspiring session from you, Mukesh sir. Thank you very much. So I hope all the students who are watching us live on FB would have really enjoyed. And as I said, ये तो 4 से 6 घंटे का सेशन है. जब हम so next time maybe जब colleges and universities reopen हो जाएगी, तो उसके बाद I'll come to your campus and maybe I'll take permission from your university chancellor, vice chancellor, and provost to conduct one full day ka session, and I would like to spend 6-8 hours with the students so that we can have more better and enriching session. Definitely, sir. Yes. Yeah, Yes, thank sir. you very much.
Yes, sir. In this 1 hour, you have covered so many secret tips. And how about how to start a business, a journey of entrepreneurs, and most importantly, the crux, why startup fails, right? So, and also you have provided so many secret and precious tips in which I liked many. Okay, many of tips I have written in my paper, in my note, and definitely I will repeat them as well as I will stitch them on my walls in my No, office. absolutely. That is So very, very and important yes, because हमारे पास information के sources इतने ज्यादा हैं. I always tell people जिन लोगों ने भी गजनी देखी होगी, हम लोग सब वो गजनी के शिकार हो गए because we all have this short-term memory loss because we are surrounded by information and there's so much of bombarding of information happening on us. तो मतलब आप सोचो 2 दिन पहले की अगर मैंने किसी को पूछ लिया ना कि 2 दिन पहले आपने क्या किया था तो वो भी उसको याद नहीं होगा. तो yes, sir. आप दैट इज द रीजन व्हाई आई ऑलवेज से कि देयर आर दिस सीक्रेट टिप्स. मतलब एनीवन जब मेरी कोई कैबिन में जब कोई एंटरप्रेन्योर आता है तो वो हमेशा देखता है कि मेरी कैबिन में इट्स ऑल फुल ऑफ ग्लास और उस ग्लास कैबिन के ऊपर देयर आर ऑल दिस सीक्रेट टिप्स व्हिच आई हैव रिटन. इज जस्ट बिकॉज कि जब मैं अपनी कैबिन में बैठा हूं तो आई ऑलवेज विल कीप ऑन रीडिंग दिस थिंग सो दैट आई डोंट फॉरगेट. Yes, yes, sir. जी. And I would really like to revise few of the tips which I liked very much. Very quickly, I will go through it and then we will take a few question answer. Yeah. So I'm repeating those very wonderful lines which I like the most. The first one was the हारता वही है जो शिकायत करता है. हारता वही है जो शिकायत करता है और जीतता वही है जो कोशिश करता है. The second one, if you have a negative mindset, you will not have a positive output. And the third one, पहचान से मिला काम बहुत समय तक नहीं रहता है, लेकिन काम से मिली पहचान वो रहेगी. लंबे समय तक. So yes, yes, sir. So now I have a few questions from my team and as well as from me. So I'm taking those here. Okay. So this is the first question, sir. I think it is visible on your screen as well. Yeah. So for any startup, one need to have right timing. Many startup fails just because their products are well before time. So how one can identify right timing for any startup in early stage? ओके सो इस पे 2 चीजें हैं. एक तो मैंने प्रोडक्ट सो वेल बिफोर टाइम आ गया, सो दैट इज वन ऑप्शन, दी वन सिनेरियो. एंड सेकंड इज कि बहुत सारे लोग उसमें आ गए और मैं भी कूद पड़ा उसके अंदर. So दोनों are very, very challenging, very challenging. But the first one is much better. If you come out with a idea which is really very innovative, and जब आप मार्केट में पायलट प्रोजेक्ट उसका रन करते हो तो आपको ये पता चलता है कि ये प्रोडक्ट का एक्सेप्टेबिलिटी अभी नहीं है, जस्ट बिकॉज कि आप उससे ज्यादा टाइम से एक पहले आ गए हो और उसकी वजह से ये लोगों को कंसेप्ट अभी समझ में नहीं आया. तो बहुत सारी चीजें आप देखोगे जो यूएस में, यूके में होती हैं, वो हमारे इंडिया में आती है, लेकिन वो वहां पे एक लेवल पे सेचुरेट होने के बाद इंडिया में आती है. सो पर्टिकुलर जब स्टार्टअप जब बाहर जाते हैं और वहां जाके कुछ देख के आते हैं, स्टूडेंट्स जब वो अब्रॉड ट्रैवल करते हैं या वो गूगल पे R&D कर रहे होते हैं, तो उन्हें पता चलता है कि यूएस में और यूके में व्हाट इज समथिंग न्यू विच इज हैपनिंग and let's replicate that same here in India. But वहां का मार्केट का टाइमिंग वो सही था बिकॉज वहां की ऑडियंस और वहां का लोगों का थॉट प्रोसेस वाज डिफरेंट एंड दैट्स द रीजन व्हाई दैट टेक्नोलॉजी एंड व्हाई दैट कंसेप्ट वाज मोर पॉपुलर देयर. बट यहाँ पे अगर हम वो लाते हैं सो उसको पॉपुलर करना पड़ेगा हमें बिकॉज दैट इज गोना कम. आप शायद आज उसको जल्दी ले आए हो, तो अगर हम ऐसा कोई रिसर्च और ऐसा कोई इनोवेटिव प्रोडक्ट लाते हैं तो इसका मतलब है कि मेरा जेस्टेशन पीरियड मुझे थोड़ा और लंबा सोच के रखना पड़ेगा. अगर मैं ये सोच रहा था कि 6 महीने में मैं ब्रेक इवन कर लूंगा, शायद 6 महीने में ब्रेक इवन नहीं होगा, अगले 1 साल के अंदर आप ब्रेक इवन कर सकोगे. और जो मार्केटिंग स्ट्रैटेजी हमने बनाई थी उससे ज्यादा हमें स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी ऑन एक्सप्लेनिंग द कंसेप्ट अबाउट दिस प्रोडक्ट एंड अबाउट दिस, उसके बारे में समझाना पड़ेगा. सो इसका मतलब है कि मैं प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च करने से पहले एज्यू मार्केटिंग कंसेप्ट पहले इंट्रोड्यूस करूंगा मार्केट में. एंड मैं आई वुड वर्क ऑन दी
marketing strategy so that people can digest it. बहुत बार क्या होता है, लोगों को वो concept digest नहीं होता है, और जब तक वो concept उनको digest नहीं होगा तो वो उसको उसकी adaptability नहीं आती है. सो एंटरप्रेन्योर के लिए ये बहुत जरूरी है कि मैं अपना पायलट प्रोजेक्ट पहले करूं, तो उससे उनको समझ में आ जाएगा कि ये प्रोडक्ट का और कंसेप्ट का एक्सेप्टेबिलिटी कितना रहने वाला है. एंड बेस्ड ऑन दैट I will look at my costing, I will look at my cost benefit analysis, and based on that I'll plan my marketing strategies. But it is really very challenging, but at the same time अर्ली एंट्रेंट को उतनी ही ज्यादा अपॉर्चुनिटी भी है. सो द सेकंड वाला जो ऑप्शन है ना, दैट्स अ डेंजरस ऑप्शन के 50 लोग आ गए उसके अंदर और मैं भी उसके अंदर आ गया. सो दैट्स अ रियली वेरी डेंजरस ऑप्शन. बट देन अगर किसी ने रियली रिसर्च किया है और अगर कोई इनोवेटिव प्रोडक्ट और सॉल्यूशन लेके आया है तो उसको अर्ली एडवांटेज, अर्ली मूवर will always have that benefit. But yes, because it's new, they will have to really plan out very well, but then they will always have that early advantage and early mover ka, and they will really be able to encash the market very well. Yes sir, rightly said. The second question is, once a new idea gets clicked into the market, lots of similar products, competitors arises, so how to withstand or survive in such case? आपने जो अभी बताया वैसे ही. Okay, so इसमें भी there are two things. एक होता है कि आपके पास कोई एक आइडिया आया, आपने एक छोटा पायलट प्रोजेक्ट किया तो आपको समझ में आ गया कि दिस इज गोना बी अ सक्सेसफुल मॉडल. तो आजकल बहुत सारे so intellectual property rights आ गए हैं. You can patent, you can get it trademark, you can have proprietary technology trademark. So ये बहुत सारे options अभी available हैं. And initially they were very expensive. Now those ideas and concepts are not very expensive. It's only that it will take some time. But so अगर really pilot project करने के बाद जब हमें समझ में आता है कि ये idea scalable हो सकता है, this is a really good idea and I want to patent it in my name. So हम भी पहले pilot project करवाने के बाद immediately पहले उसको trademark patent कराने के लिए IPR के अंडर में डाल देते हैं. So that once that is done, उसके बाद then we come out with the launch, commercial launch उसके बाद करते हैं फिर उसके बाद. So that is one scenario. So any good startup should always take care of their patent, trademark and intellectual property rights. That is one. Second is जहाँ पे there are entrepreneurs, students, final year students जो हमारे पास आते हैं और वो कहते हैं कि हमारे पास एक idea है, but I will not share that idea with you also. बट हमें कहीं से भी आप 10 लाख 15 लाख 25 लाख की फंडिंग करा के दो एंड बिलीव मी, ट्रस्ट ऑन मी, दिस इज वेरी फैंटास्टिक आइडिया एंड दिस विल रियली बी अ सक्सेसफुल आइडिया. एंड आई ऑलवेज टेल देम कि अपने आइडिया को शेयर करने से कभी भी डरना नहीं चाहिए. अपने आइडिया शेयर करो लोगों के साथ, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड. बिकॉज आप जब किसी के साथ आइडिया शेयर करते हो तो आपने उसके पीछे बहुत रिसर्च किया होगा, तो आपके दिमाग का कोई क्लोन नहीं बन सकता, आपका कोई क्लोन नहीं बन सकता. आपके आइडिया को तो शायद कोई रेप्लिकेट कर भी जाएगा, लेकिन जो आपकी एग्जीक्यूशन स्ट्रेटेजी है, आपकी स्पीड है, आपकी एनर्जी है, आपका पॉजिटिव माइंडसेट है, आपका रिसर्च है, आपका डेटा है, वो तो सामने वाले के पास होगा ही नहीं. तो वो उसके चांसेस ऑफ बिकमिंग सक्सेसफुल जस्ट बिकॉज उसने आपका आइडिया रेप्लिकेट किया है आर गोना बी वेरी वेरी डिफिकल्ट. बट बिकॉज आपने ये सारा कुछ खुद किया है, आपने कहीं से कट कॉपी पेस्ट मॉडल नहीं लिया है, तो आपके चांसेस ऑफ बिकमिंग सक्सेसफुल आर गोना बी वेरी वेरी हाई. Yes sir. The third question is for youngsters, startup, entrepreneurship. For youngster and startup, entrepreneurships are very fancy journey. What is your advice to them before starting this journey? Yes, absolutely. That is something that I have always been. And इसीलिए मैं जब यूनिवर्सिटीज में जाता हूँ तो मैं वाइस चांसलर और प्रोवोस्ट को बोलता हूँ कि फाइनल ईयर स्टूडेंट्स को काउंसलिंग करने से अच्छा है फर्स्ट ईयर स्टूडेंट को हम समझाना शुरू करें कि जो फर्स्ट ईयर एमबीए स्टूडेंट आता है और वो सोच रहा है कि मैं एमबीए खत्म करने के बाद अपनी एंटरप्रेन्योरल जर्नी शुरू करूंगा, तो उसको वो 2 साल के अंदर उसका माइंडसेट पहले हम रेडी करते हैं.
जहाँ पे हम उन्हें समझाते हैं कि एंटरप्रेन्योरियल जर्नी इज वेरी सक्सेस, मतलब इज वेरी चैलेंजिंग, इज वेरी रिवॉर्डिंग, बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं उसके अंदर, बट एट द सेम टाइम it is very challenging as well. But you know, so 2016 में जब नरेंद्र मोदी जी ने शुरू किया था स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, स्किल इंडिया, मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया, तो उसके बाद से ये हमारा स्टार्टअप वर्ड जो है ना, दैट वर्ड हैज बिकम अ रियल फैंसी वर्ड एकदम. एंड आई रियली मीट लॉट ऑफ स्टार्टअप्स एंड मतलब एंटरप्रेन्योर्स को मैं मिलता हूँ, एंड मतलब सच अ फैंसी अपनी वो डेजिग्नेशंस बना के लाते हैं यू नो अपने विजिटिंग कार्ड के ऊपर. बट जब उनसे 2 सवाल पूछ लो तो मुझे समझ में आ जाता है कि इनका थॉट प्रोसेस क्या चलता है. एंड जैसा मैंने अभी आपको बताया यू नो कि हमारा गुजराती में कहावत है, बिजनेस કરવામાં પહેલા 1000 દિવસ તો આપણે સસ્ટેન કરવું પડશે, you know. So first 1000 days if you are able to survive in that business is when after that you will be able to scale up your business, and that is when you are considered as a successful startup entrepreneur. Okay. And second, ये स्टार्टअप और एंटरप्रेन्योर का जो ये जो टैग है ना, दैट हैज आल्सो बिकम वेरी फैंसी, यू नो. सो आई ऑलवेज टेल पीपल कि आप एक ट्रेडर, एक होलसेलर, एक डीलर, एक स्टॉकिस्ट, एक सोलोप्रेन्योर और एक एंटरप्रेन्योर और एक बिजनेसमैन और एक इंडस्ट्रियलिस्ट, इनके बीच के डिफरेंस को समझने की कोशिश करो, यू नो. सो मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं पूरे इंडिया से जो वन मैन आर्मी होता है और वो बोलता है कि मैंने अपना स्टार्टअप शुरू किया है. सो आई ऑलवेज टेल देम कि इफ यू आर अ वन मैन आर्मी देन यू कैन नॉट बी कॉल्ड एज अ स्टार्टअप, देन यू आर अ सोलोप्रेन्योर, है ना. तो आप अपने आप को सबसे पहले तो वो एंटरप्रेन्योर बोलना बंद कर दो. इफ यू आर अ फाउंडर, तो आप अकेले ही हो और आप फाउंडर हो, तो फिर उस अकेले के ऊपर फिर को फाउंडर टीम्स कहाँ हैं. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि ये. और दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट, यू नो, पीपल स्टार्टअप बिकॉज दे थिंक कि हमको तो फंडिंग इजीली मिल जाएगा, तो આપણે તો 1 વર્ષ 2 વર્ષમાં આપણે આપણું સ્ટાર્ટઅપ વેચી દઈશું ને આપણને 2-5 કરોડ રૂપિયા તો મળી જશે. એન્ડ આઈ ઓલવેઝ ટેલ देम કે ऐसे ही अगर 2-5 करोड़ सबको मिल जाते होते तो फिर तो क्या चाहता था सबको, यू नो. So when you start your business, don't start business to sell to someone because it is your baby. You will have to nurture it and you will have to make sure that you grow this baby well. आज अपने घर में जब हम अपने बगीचे में एक आंबा का पेड़ लगाते हैं तो उसको भी 7-8 साल लग जाते हैं जब पहला उसमें से फ्रूट आता है. सो आप अपना एक स्टार्टअप शुरू कर रहे हो और आप शुरू करते समय ही आप सोच रहे हो मैं इसको 2 साल में बेच दूंगा. So never start your startup with that vision. Start your startup with that vision कि मैं इस बिजनेस को 1000 करोड़ का बनाऊंगा और मैं इसमें आईपीओ में जाऊंगा, मैं इसको पूरी कंट्री में लेके जाऊंगा, मैं अपने अंडर में 500 लोगों को नौकरी दूंगा, मैं इंडिया के टॉप मोस्ट स्टार्टअप में अपना नाम दर्ज कराऊंगा, मैं गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराऊंगा, मैं लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज कराऊंगा. That is the kind of thought process that this young entrepreneur should have. Okay. One more. In context to COVID-19 pandemic, several new opportunities have been arises. For example, education services, healthcare services. At the same time, what kind of risk one should take and what kind of challenges one may face while dealing with the related startups? So whether it is COVID or whether it is pandemic or whether it is any normal circumstances or any normal situation, you know, जब कभी भी हम business शुरू करेंगे, so there are always going to be challenges in our business. I have to be ready with those challenges. But point is, मैं अपना उसका अगर होमवर्क नहीं करता हूँ बरोबर और मैं आइडेंटिफाई नहीं करता हूं कि व्हाट आर द चैलेंजेस दैट आई एम लाइकली टू फेस एंड सडनली आई come across those challenges because I was not mentally ready to face those challenges and suddenly I saw कि ये challenges आ गई, तो अब मैं क्या करूंगा. and suddenly ही वो 10 कदम आगे चलने के बाद 2 कदम पीछे आके बैठ जाता है कि अरे यार ये तो मैंने सोचा ही नहीं था, तो आ क्या थी આવી ગયું, આ કેવી રીતે આવ્યું. So it is always better that you do your homework properly, understand what are the challenges, what are the risks attached to it. एक एंटरप्रेन्योर जब वो डिसाइड करता है कि मैं अपना एंटरप्रेन्योर स्टार्ट करूंगा, मैं अपना बिजनेस शुरू करूंगा,
अपने ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन खत्म करने के बाद उसका मतलब है that this boy or this guy or this girl is ready to take that little risk in life because she or he thinks that they are different than others, and they can take that risk in life because they want to do something different than the other. Okay. So जितने भी ये लोग हैं, you know, I am sure ये स्कैम 1990 जो वेब सीरीज आई थी वो सबने देखी होगी, अगर नहीं देखी है तो प्लीज गो एंड वॉच रिस्क है तो इश्क है। या तो अगर एंटरप्रेन्योरल जर्नी शुरू करनी है तो यू नो मतलब जिंदगी में थोड़ा बहुत तो रिस्क लेना ही चाहिए। रिस्क है तो ही रिवॉर्ड है, नहीं तो फिर रिवॉर्ड ही नहीं है। Yes sir, yes sir. Or my last question is related very much to it. High risk and high return as an entrepreneurship, how do you see this perspective? Okay, so you know, entrepreneurial journey में I always look at only risk because अगर हमने calculative risk लिया है, so then I am aware of the risk that are attached to my business or to my startup. There are people जो risk के बाहर जाके करना चाहते हैं and they are ready to take that high risk. So especially when अगर आपका नया स्टार्टअप है तो उसमें हाई रिस्क इज व्हाट यू नो, सो आपका स्पेंडिंग दैट इज समथिंग एट अ वेरी जो हाई रिस्क होता है, जहां पे आपने इनिशियली ही ह्यूज मार्केटिंग एक्सपेंस ले लिया, आपने एक बड़ी फैंसी ऑफिस बना ली, अपनी कैबिन एक बना ली और आपने 2 लोगों को एम्प्लॉय करके उधर बिठा दिया, तो आपने एक हाई रिस्क वो ले लिया बिकॉज आपने स्पेंडिंग तो आपने खर्चा तो कर दिया सारा। सो I always tell them that any single expense that you are doing, you must think twice before spending. कि मैं ये खर्चा क्यों कर रहा हूँ, इससे मुझे क्या बेनिफिट होने वाला है, इज इट रियली नेसेसरी टू स्पेंड एट दिस मोमेंट, ये खर्चा करना जरूरी है आज, या मैं इसको 1 महीना बाद करूँ या मैं 2 महीने बाद करूँ। यू नो जब एक नया स्टार्टअप शुरू होता है तो वो 300-500 स्क्वायर फुट की एक छोटी सी ऑफिस में से भी अपना काम शुरू कर सकता है, उसको कोई जरूरी नहीं है कि वो एक बड़ी 2000 स्क्वायर फुट या 1000 स्क्वायर फुट की ऑफिस बना के खड़ी करे। देयर आर स्टार्टअप्स जो व्हेन आई ट्रैवल टू बैंगलोर, हैदराबाद, चेन्नई, कोचीन, पूना, गुड़गांव, यू मस्ट सी दे वो कोवर्किंग स्पेस में से वो लोगों ने अपना स्टार्टअप शुरू किया हुआ होता है, बट 3, 4, 5 साल तक वो कोवर्किंग स्पेस में बैठ के काम करते हैं और उसके बाद दे गो टू अ बेटर ऑफिस एंड अ बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर वो तैयार करते हैं। बट सो वो अपना कैपिटल को प्रोटेक्ट करके रखते हैं और अपनी एक रेवेन्यू पहले एक रेवेन्यू जनरेट करते हैं, उस रेवेन्यू में से जो प्रॉफिट्स आते हैं उसको वो फिर अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर स्पेंड करते हैं। सो अपने कैपिटल को हमेशा बचा के रखना चाहिए रादर देन जस्ट स्पेंडिंग इट अनवाइजली। Okay, so thank you sir, thank you very much for your very inspiring view and talk. So really I'm very delightful with your inspirational talks and as I told you secrets and tips. Yes, okay. Secret tips. So once again I thank you very much on behalf of Swarnim Startup and Innovation University. Thank you sir. Thank you very much.